history class. In today's class we are going to discuss chapter number 6, which is Peasants and Farmers, and today's session will be session number 4. So in this session हम लोग start करेंगे bread basket and dust bowl से. At that time that common fields were being enclosed in England at the end of the 18th century. Settled agriculture had not developed on any extensive scale in the USA. So at that time कि जब common fields were being enclosed, जो हम लोगों ने पहले earlier session से बात करी कि वो enclosed हो रहे थे common fields at the end of the 18th century जो हो रहा था. Settled agriculture had not developed, वो अभी तक develop नहीं हुआ था on any extensive scale in the USA. तो जो भी settled जो agriculture है वो उस तरीके से अभी तक develop नहीं हुआ था. It was being just starting क्योंकि जो common fields थे वो enclosed हो रहे थे. Forest covered over 800 million acres and grassland 600 million acres. तो जो forest का area था that covered over 800 million acres and जो grasslands था वो था 600 million acres का area. So we can see in the this picture में हम लोग देख सकते हैं कि forest vegetation कितना है, tall grass कितनी है, short grass and desert जो vegetation है वो कितना है. Most of the landscape was not under the control of the white Americans. Till the 1780s, white American settlement were confined to a small narrow strip of coastal land in the east. So most of the जो landscape था वो under जो control है white Americans के उनके control में नहीं था. Till 1780s, white Americans जो हैं उनका जो settlements था they were confined to very नैरो जो स्ट्रिप थी कोस्टल लैंड में ईस्ट में वहाँ पे वो थे. तो दैट्स वाई वो चीज़ें जो थे वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे. इट वॉज नॉट अंडर देयर कंट्रोल. इफ़ यू ट्रैवल्ड through the country at that time, you would have met various Native American groups. Several of them were nomadic, some were settled. तो अगर उस टाइम में if you would have traveled the country, through the country if you would have traveled, तो बहुत सारे जो you would have met जो various जो वहाँ पे Native American groups हैं वो वहाँ पे मिलते. Several of them जो थे वो nomadic थे, जो एक जगह नहीं रहते थे, इधर से उधर वो मूवमेंट करते रहते थे. एंड कुछ जो थे वो सेटल थे. तो दिस इज़ हाउ पहले उस ज़माने में जो नेटिव जो अमेरिकन ग्रुप्स थे वो बहुत सारे रहते थे एंड दे वर इन द मेन एरियाज़. बट अभी जो हैं वो सब अपने बिल्कुल ही अलग एरिया में रहते हैं बिकॉज अभी थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड. बहुत मॉडर्नाइज हो गया है. सो एट दैट टाइम अगर आप ट्रैवल करते थे यू कुड हैव मेट वेरियस जो नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैं उनको. Many of them lived only by hunting, gathering and fishing. Others cultivated corn, beans, tobacco and pumpkin. तो जिस तरीके से हमारे यहाँ जो nomadic लोग होते हैं and उस in those time life was simple. All that people used to do, जो भी करते थे वो केवल hunting था, gathering, fishing, इस तरीके की चीज़ें करते थे. तो दैट वॉज वो वही सारी चीज़ें उस टाइम जो नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैं वो करते थे. दे यूज्ड टू डू हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग, इस टाइप की चीज़ें करते थे. एंड कल्टिवेट करते थे नॉर्मल जो कॉर्न है, बीन्स है, टोबैको एंड पम्पकिन. तो जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनको वो ग्रो करते थे. एंड दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू लिव अ सिंपल लाइफ. Still others were expert trappers through whom European traders had secured their supplies of beaver since the 16th century. Still others were expert थे जो trappers जो expert trappers थे through whom जो European traders हैं वो secure करते थे their supply of beaver के जो फर होते हैं उनको since the 16th century. तो some people were engaged in that kind of work जहाँ पे वो secure करते supply of beaver fur. By the early 20th century, this landscape had transformed radically. White Americans had moved westward and established control up to the west coast, displacing local tribes and carving out the entire landscape into different agricultural belts. तो by the early 20th century जब आया तब तक landscape जो था वो बिल्कुल ही चेंज जो हो चुका था. उसमें रेडिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था. वहाँ पे वाइट अमेरिकन्स जो थे दे हैड मूव्ड वेस्टवर्ड
एंड उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था कंट्रोल अप टू द वेस्ट कोस्ट जो है वहाँ तक अपना उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और उन्होंने जो लोकल ट्राइब्स थी दे हैड डिस्प्लेस्ड दोज लोकल ट्राइब्स एंड दे स्टार्टेड कार्विंग आउट द एंटायर जो लैंडस्केप है उसको वो एग्रीकल्चर जो बेल्ट है उसमें वो चेंज करने लगे। सो दिस इज़ हाउ जो ट्राइब्स थी वो मूव हो गई एंड वो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया सिंस जो वाइट अमेरिकन थे दे मूव्ड वेस्टवर्ड। After the American War of Independence from 1775 to 1783 and the formation of the United States of America, the white Americans began to move westward. तो after जो American War of Independence हुई जो चली 1775 to 1783 एंड जो फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फाइनली, उसके बाद जो वाइट अमेरिकन्स थे दे बिगेन टू मूव वेस्टवर्ड, उन्होंने मूव करना शुरू किया। By the time Thomas Jefferson became president of the USA in 1800, over 700,000 white settlers had moved on to the Appalachian Plateau through the passes. Seen from the east coast, America seemed to be a land of promise. तो by the time जो थॉमस जेफरसन है वो प्रेसिडेंट ऑफ USA बने in 1800 में, ओवर जो 700,000 वाइट सेटलर्स थे वो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो अमेरिका जो है दैट सीम टू बी लैंड ऑफ प्रॉमिस, जो अभी भी उसे देखा जाता है कि वो लैंड ऑफ प्रॉमिस है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो सिंस दैट टाइम स्टार्टेड वो ऐसा दिखने लगा कि दैट वाज अ लैंड ऑफ प्रॉमिस। Its wilderness could be turned into cultivated fields. Forest timber could be cut for export, animals hunted for skin, mountains mined for gold and minerals. तो उसकी जो wilderness है that could be turned into जो cultivated fields हैं उसमें उसको change किया सकता था and that's what happened. Forest timber जो है वो use कर सकते थे वो export के लिए, तो उसको cut किया गया, उसको यूज़ करा गया एक्सपोर्ट के लिए। एनिमल्स जो है उनको हंट किया गया स्किन के लिए उनकी, एंड माउंटेन्स जो हैं वो माइन किए गए गोल्ड एंड मिनरल्स के लिए। एंड दिस इज़ हाउ इट बिकेम द लैंड ऑफ प्रॉमिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट दिस meant that the American Indians had to be cleared from the land. In the decades after 1800, the US government committed itself to a policy of driving the American Indians westward, first beyond the river Mississippi and then further west. बट ये जो सारी चीज़ें थी कि जिस तरीके से माइनिंग शुरू हुआ, जिस तरीके से ऑल दीज थिंग कल्टिवेटेड लैंड बनना शुरू हुआ ज़्यादा, जो इसके साथ साथ अमेरिकन इंडियंस जो थे उनको भी क्लियर किया गया लैंड से। दे हैड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द लैंड एंड इन द डेकेड्स आफ्टर 1800 जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने कमिट किया कि वो ये पॉलिसी कि वो ड्राइव करेंगे अमेरिकन इंडियंस को वेस्टवर्ड। फर्स्ट उन्होंने बियॉन्ड द रिवर मिसिसिपी एंड देन फर्दर वेस्ट उनको किया जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट कमिटेड itself फॉर दैट पॉलिसी। As the Indians retreated, the settlers poured in. They came in successive waves. They settled on the Appalachian Plateau by the first decade of the 18th century and then moved into Mississippi Valley between 1820 and 1850. तो as the Indians जो हैं वो उन्होंने वापस जाना शुरू किया, they retreated. So वैसे ही the settlers जो हैं वो आना शुरू हो गए वहाँ पे। दे स्टार्टेड एक्चुअली पोरिंग इन, दे केम इन सक्सेसिव वेव्स में वो आए एंड दे सेटल ऑन द अपेल्शियन प्लेटू, वहाँ पे वो सेटल हुए फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी में। एंड देन दे मूव्ड इन टू द मिसिसिपी वैली जो है बिटवीन 1820 टू 1850 में, फिर उन्होंने वहाँ सेटल होना शुरू किया। They slashed and burned forests, pulled out the stumps, cleared the land for cultivation and built log cabins in the forest clearings. तो उन्होंने स्लैश एंड बर्न करा फॉरेस्ट का एंड जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत थी उन्होंने क्लियर करा लैंड को कल्टिवेशन के लिए, एंड ऑल्सो दे बिल्ट लॉन्ग केबिन्स इन द फॉरेस्ट क्लियरिंग। सो दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग इन द न्यू एरिया जहाँ पे जो वहाँ पे दे स्टार्टेड क्लियरिंग ऑल द थिंग्स एंड जिस तरीके से उनको सेटल होना था, सो दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज थिंग्स। Then they cleared larger areas and erected fences around the fields.
they plowed the land and sowed corn and wheat. तो then उन्होंने larger जो areas हैं उनको clear करना शुरू किया. It was all land, empty land है. So they started clearing all the land. बड़े area को अब उन्होंने clear करना शुरू किया. And they also erected fences जो हैं उन्होंने around the fields लगाना शुरू किया. उन्होंने plow किया land को, उन्होंने sow किया जो corn है and wheat है, तो उसको उन्होंने लगाना शुरू किया. In the early years, the fertile soil produced good crops. When the soil became impoverished and exhausted in one place, the migrants would move further west to explore new lands and raise a new crop. So earlier, जब उन्होंने in the beginning जब उन्होंने cultivation किया तो crop was really good because the soil was good. Soil बहुत fertile थी, तो it produced very good crop for them. बट धीरे धीरे जब वो उसी सॉइल पे वो हमेशा करते रहे जो क्रॉप वो लगा रहे थे, तो धीरे धीरे वो जो सॉइल था वो इट बिकेम एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस. देन व्हेन इट बिकेम एग्जॉस्टेड तो माइग्रेंट्स दे स्टार्टेड मूविंग वेस्टवर्ड. तो वो और मूव उन्होंने करना शुरू किया वेस्टवर्ड, जिससे वो उन्होंने एक्सप्लोर करे नए लैंड्स को एंड वहाँ पे उन्होंने क्रॉप लगाना शुरू किया. It was, however, only after the 1860s that settlers swept into the Great Plains across the river Mississippi. In subsequent decades, this region became a major wheat-producing area of the America. And it was, however, only after 1860 जो settlers जो हैं वो they swept into the Great Plains जो हैं across the river Mississippi. वहाँ पे they started living there. In subsequent decades में this region became a major जो wheat-producing जो एरिया है वो बन गया यूएस का. इन सब्सिक्वेंट डिकेड्स उस एरिया को उन लोगों ने इतना ज़्यादा क्लियर करके इतना उसको यूज़ किया कि इट बिकेम द मेजर जो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बन गया. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. अबाउट किस तरीके से द थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड जो नेटिव अमेरिकन है किस तरीके से उनको धीरे धीरे दे मूव्ड टू अनदर प्लेस एंड देन जो सेटलर्स थे दे स्टार्टेड पोरिंग इन, उन्होंने कल्टिवेशन करना शुरू किया एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन द यूएस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.